Good morning to all of you. Today we will learn total energy of the satellite moving in circular orbit. So write down the heading: total energy of the satellite moving in circular orbit. Suppose this is our Earth of mass ME. A satellite is revolving at a distance of a small r from the center of Earth, and mass of satellite is called m0. So here gravitational force of attraction between Earth and satellite. That gravitational force of attraction is sufficient. It will provide a sufficient centripetal force to revolve this satellite in a circular orbit. So we can write centripetal force m0 e square upon a small r, which is given by gravitational force of attraction g, mass of Earth, mass of satellite upon r square. R will get cancelled out, and m0 v square is equal to g, mass of Earth into mass of satellite into radius r. We need total energy. So we need kinetic energy as well as potential energy. To make this kinetic energy, divide both sides by half. So 1/2 m0 v square is equal to g, mass of Earth, mass of satellite upon 2r. So we call this is as kinetic energy. This is given as mass of Earth, satellite upon 2r. This is kinetic energy. Is it okay? Yes, sir. Now we know the formula of potential energy. So write down potential energy U. So U is given as minus g, mass of Earth, mass of satellite upon radius r. This is potential energy. So total energy, now write down total energy TE. Total energy nothing but kinetic energy plus potential energy. Total energy TE is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is given g, mass of Earth, mass of satellite upon 2r, and potential energy is g, mass of Earth, mass of satellite upon r. So we will get total energy is equal to minus g, mass of Earth, mass of satellite upon 2r. This is total energy. But look at the minus sign. This is a total energy of a satellite, which comes in minus g, mass of Earth, mass of satellite upon 2r. This negative sign represents the satellite is bounded to the Earth. Satellite is bounded to the Earth. So a concept binding energy comes here. What is meaning of binding energy? It is the energy required to escape or to remove the particle or to remove the satellite from Earth's gravitational field. So first note down in your running notes that
total energy is negative, write down, total energy is negative, full stop, it shows that the satellite is still bounded with the planet. यहां पर मीनिंग क्या होगा प्लैनेट का? अर्थ. Here negative sign shows that the satellite is still bounded with planet. थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों में क्या रिलेशन है. अब टोटल एनर्जी जो दिख रहा है, टोटल एनर्जी TE इज इक्वल टू माइनस, तो ठीक है, we can write this expression just equal to kinetic energy, just equal to kinetic energy. यह एक रिजल्ट मिलता है. यहाँ मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करता है बहुत बार कि रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑन इन हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो रेशियो यहाँ पर क्या होगा इनका? 1:-1, यानी -1:1 का रेशियो होता है टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी पक्का नेगेटिव ही होगा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यह होता है पॉजिटिव. तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो -1:1. और यहां से देख सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी को अगर लिखा जाए टोटल एनर्जी के फॉर्म में तो क्या दिख सकता है सर? माइनस, ठीक है, इतना. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. 2 को आप लेफ्ट में लेकर के जाओ तो राइट में क्या दिखाई देगा? -Gmm/r. यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिए आप लोग. अब बाइंडिंग एनर्जी, यही हमारा बाइंडिंग टोटल एनर्जी जो मिला है मुझे, इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम इज बाउंडेड. और बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी टोटल एनर्जी है उसका जस्ट पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा बाइंडिंग एनर्जी. सो हियर बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट BE इज इक्वल टू प्लस Gmm/2r. बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है और टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी एक निकल चुका है. क्वेश्चन देखते हैं. आप सेट 1 का क्वेश्चन नंबर बोलता हूं, ओपन कीजिएगा. पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 48. सेट 1 पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 48. A particle of mass m is revolving. Particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius capital R under a centripetal force equal to -A/r². अब यहाँ पर फोर्स क्या दिखा रहा है? फोर्स इज इक्वल टू -A/r². ठीक है जी. Where A is constant, the total energy of particle is, ऑप्शन दिया गया है A/r, option B is equal to -A/r, C is A/2r, option D is -A/2r. ठीक है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो वी नीड काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स.
और ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, सो वी कैन इक्वेट दिस फोर्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन r square. Just a minute. This force is given, which is just equal to a by r square. Now 1/2 mv square is equal to a by 2r. We are getting kinetic energy is equal to a by 2r. We know that relation between force, potential energy and distance. F is equal to minus du by dr. So du is equal to minus f dr. Actually this is in vector notation, force vector and displacement vector. Our potential energy is scalar quantity. Du. What is force, sir? Force is nothing but here minus a by r square or dr. Integrate both sides. Du is equal to a by 1 by r square, or this is potential energy u is equal to, after integration this a is constant, so inside integration 1 by r square dr. So integrate this one, we will get minus 1 by r, or our potential energy is equal to minus a by r. We need total energy. So total energy PE is equal to kinetic energy plus potential energy. So what is kinetic energy? We are getting here a by 2r, and potential energy is equal to minus a by r. So total energy TE is equal to minus a by 2r. Minus a by 2r. So यहाँ पर TE is equal to जो नोटिफिकेशन यूज किया गया है सिंबल में a by 2r. So we'll get option D is correct. D. Move on to next one. Next, geostationary satellite. Geostationary satellite. आप ये जूम करो कि यहाँ अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, और एक सैटेलाइट है मास m, ये अर्थ के सराउंडिंग में मूव कर रहा है। इसका नाम दिया गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। होता क्या है कि इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर का ही होता है। जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की है
वही एंगुलर वेलोसिटी इस सैटेलाइट का भी है। तो जो पर्सन इस अर्थ पे खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करेगा, इसके मोशन को, तो लगेगा कि सैटेलाइट जस्ट रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। तो सैटेलाइट विल जस्ट लुकिंग लाइक दैट इट इज इन रेस्ट कंडीशन, सो इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। रेस्ट में महसूस होगा, इसलिए बोलेंगे इसको कि यह स्टेशनरी जैसे बिहेव कर रहा है। So as we know that the Earth rotates about its axis with angular velocity omega, and time period of Earth is 24 hours. नीचे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर नोट्स में, suppose a satellite is set, set in an orbit which is in the plane of equator. अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग ज्यादा फायदेमंद कहाँ से होती है, इक्वेटर से या पोल से? तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है इक्वेटर से, क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग करने के टाइम पे आप जो पहले पढ़ चुके हो कि जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव, आप इसको पढ़ चुके हो। तो इक्वेटर पे 5 होता है, तो इफेक्टिव जी इस जी से कम होगा, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने में आसानी होगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पहले ही मिल चुका होता है इक्वेटर के ऊपर। जैसे कि हमारा लॉन्चिंग पैड विशाखापत्तनम में है, वो बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड है इसरो का, इंडिया का विशाखापत्तनम में लॉन्चिंग पैड है। वहां से वह संयोग से अर्थ के इक्वेटर पे ही लोकेशन आता है, इसलिए वहां बनाया भी गया है लॉन्चिंग पैड। ठीक है, आप लिख रहे थे क्या कि सपोज अ सैटेलाइट इज सेट इन एन ऑर्बिट व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, whose omega is equal to omega earth, or its time period t is 24 hours, or its time period t is 24 hours, and direction is also same as that of earth. Full stop. Then as seen from earth, it will appear to be stationary. This type of satellite is called geostationary satellite. और क्या लिखोगे आप? T satellite is equal to अर्थ, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? 24 आवर्स का होगा। आगे लिखिए, टू अचीव T is equal to 24 hours, the orbital radius of geostationary satellite आपको पता है ना कि क्या होगा? टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा कैसे, तो हमें पता है ना, टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन
v ऑर्बिटल, और t इक्वल टू कैसे हो गया 2 पाई r, और v ऑर्बिटल रूट gm by r. So square both side, we will get this one. T square is equal to 4 pi square upon gm into r cube. नीचे लिखिए putting the values, we get orbital radius, orbital radius of geostationary satellite r is equal to 6.6 r बोलो या re बोलो, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाइट निकालना हो अगर, तो कैसे हाइट निकाल सकते हैं? ये तो पूरा कंप्लीट रेडियस होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, और यह तो कैपिटल R है, तो यही ना हमारा हाइट होगा, यह h। तो h कैसे निकाल सकते हैं? नीचे लिखिए हाइट फ्रॉम द surface h is equal to r minus capital RE। तो 6.6 RE minus RE, height h is equal to 5.6 RE। जस्ट एक क्वेश्चन लीजिए सेट 1 का, क्वेश्चन नंबर 70। If the length of the day is capital T, the height of the TV satellite above the Earth's surface, which always appears stationary from the Earth। हाइट निकालना है। अब इसमें देखिए हाइट के लिए आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से आर निकालो तो आर कितना होगा जीएम बाई 4 पाई स्क्वायर और टी क्यूब, टी क्यूब नहीं टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर। सो ऑर्बिटल रेडियस आर इज इक्वल टू जीएम बाई 4 पाई टी स्क्वायर का पावर क्या होगा 1/3 क्यूब रूट। तो आपको पता है ना कि हाइट h कैसे निकालते हैं, r माइनस कैपिटल R। तो हमें क्या मिल जाएगा जीएम बाई 4 पाई टी स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3 माइनस R। ये पाई स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर यहाँ चाहिए, स्क्वायर हो गया। दिस इज हाइट, इतने हाइट पर सैटेलाइट मूव कर रहा है। फिर से क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। अभी ये क्वेश्चन नंबर 70 था, क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अंडर imaginary force field are shown by curves KE and PE respectively in figure. The system is bounded at, सिस्टम बाउंड कहाँ पे होगा, जहां पर उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी वहीं पर सिस्टम बाउंडेड होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी हायर देन एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, और potential energy will be negative
मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर तो उतना अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर नहीं सकता हूँ, बट डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा आपको। पॉइंट कंसीडर कीजिए, पॉइंट आपको दिखाई देने चाहिए। जो पॉइंट डी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल नेगेटिव में है लेकिन उसका अमाउंट कम है, और के ई ज्यादा है, ऊपर के ई है और नीचे पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्राफ आपके सामने होगा, या पॉइंट डी पर सिस्टम का पूरा एनर्जी मींस टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी इज पॉजिटिव। सो एट पॉइंट डी सिस्टम इज नॉट बाउंडेड। बाकी सभी पॉइंट्स पे ए बी सी पर सिस्टम बाउंडेड है, लेकिन पॉइंट डी पर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, इसलिए टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ गया, इसलिए पॉइंट डी पर सिस्टम बाउंडेड नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिएगा 94, सेट 1 का ही क्वेश्चन है 94। आप क्वेश्चन पढ़ते रहो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, कौन बोल रहा है कि एनर्जी पोटेंशियल है और टोटल एनर्जी। तो ये तो जाहिर बात है कि फर्स्ट जो ग्राफ ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यह दिखा रहा है कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ 2 के बारे में क्या ख्याल है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ 3 होगा, ग्राफ 3 और ग्राफ 1 को ऐड करने के बाद हमको मिलेगा टोटल एनर्जी। सो ग्राफ 2 represents the total energy, graph first represent the kinetic energy and third one represents the potential energy। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऐड करने के बाद मिलेगा टोटल एनर्जी। तो ग्राफ 2 इज टोटल एनर्जी, ऐसे करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। आपको पता है कि टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर क्यूब होता है। बट एज्यूम इसमें क्या करना हो रहा था कि पाथ इज सर्कुलर, बट यहाँ पर पाथ तो इलिप्टिकल होगा। तो इस आर को हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू लेंगे इसका, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, इसका पावर 3। क्योंकि अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो गया तब तो पाथ होगा सर्कुलर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम और R1 प्लस R2 का पावर 3 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिखाई देगा
वो तो कैंसिल हो गया सर। ये पाई स्क्वायर अपॉन 2gm r1 प्लस r2 का पावर 3। अब लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 65 को भी देख लो। 65 में बोला है इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन t स्क्वायर एंड r क्यूब फॉर अ प्लैनेट देन इट्स स्लोप विल बी। हमारे पास तो इक्वेशन ये दिखाई पड़ ही रहा है, कंपेयर कीजिए। बोल रहा है कि वर्टिकल एक्सिस पर क्या है, टी स्क्वायर है, और ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर क्यूब है। तो इसको कंपेयर कराओ आप लोग, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। इफ यू कंपेयर दिस वन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ तो c 0 है, सिर्फ इसको कंपेयर करवा सकते हैं y इज इक्वल टू mx से। तो y पर क्या है, टी स्क्वायर है, x पर क्या है, r क्यूब है, तो m क्या होगा, स्लोप होगा। यानी कि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई स्क्वायर बाई gm। आप आराम से सॉल्व करो पूरा, और जो भी डाउट है तो उसको आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो या एकेडमी में आकर के और पूछ सकते हो। बहुत बड़े बड़े टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, टफ क्वेश्चंस कल होंगे संडे को। तो उस जो भी क्वेश्चंस क्लासरूम में होंगे उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा यहाँ ऑनलाइन। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही सफिशियंट है। 2 ही टॉपिक मैं डिस्कस किया हूँ आज क्लासरूम में। क्या डिस्कस किया हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 2 ही पॉइंट डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन हुए हैं, टास्क असाइन किया हूँ बच्चे लोगों को सॉल्व करने के लिए। आप भी पूरा का पूरा 95 क्वेश्चन नंबर तक आप सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 95। जो डाउट्स आते हैं मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, मैं ऑनलाइन में उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज इतना रखते हैं।